American politician, how this idea was built. Ultimately, please try and understand why this is important for a leader. Because narratives are built on ideas. And a leader has to sell ideas. Without selling ideas, you cannot be, even to yourself, forget about others. Even to yourself, you have to sell certain idea to lead a meaningful life. It is not sufficient Gopalji introducing me to be an effective communicator. I have to believe myself that I am an effective communicator and I can deliver it. For that, first I have to internalize that idea. What do I want to communicate and how do I want to communicate? That itself is an idea. Prime Minister Modi is a great communicator. He connects with people. But for that, he has to be convinced with the idea. Not just the idea of communication, but even the idea that he is selling to the people as a politician, as a leader. So, Swachh Bharat, Clean India mission, before even visualizing the mission, first there has to be conceptualization of idea. So, the most important part of narrative building is, what do you want to achieve through that particular process of storytelling? And when you listen certain kind of stories time and again, you start building certain perceptions about existence, the material existence, and on the basis of that perception, somebody was in the morning asking or raising expectation that how do we make choices, right choices. You make right choices when you are clear about your narratives. And you are clear about your narratives when you have clarity of ideas. So, now I can't go into one by one narration building about yourself. So, I will just take a case study of storytelling or narrative building about Bharat, Bharatiya society, Bharat's history and Bharat's present. So, 3-4 स्टोरीज सुनेंगे और उसको डिकोड करेंगे. Okay? Now, what are the biggest narratives that you feel we have created about Bharat for ourselves and for the world? भारत कहने के बाद हमारे अपने मन में क्या आता है और वर्ल्ड के पूरे दुनिया के लोगों के मन में क्या आता है, ऐसा आपको लगता है? या एंशिएंट सिविलाइजेशन. ओके. Okay, now for last 20 years, it's one of the biggest consumer market. What else? राम राज्य. वो तो बनाना है यार अभी नैरेटिव. वो तो अभी मोदी जी ने बनाना शुरू किया है. Okay, culturally enriched country, old civilization, ancient civilization, yes. Startups. Okay. Fastest growing economy. Okay. It's a reality or it's a narrative? Okay. I'll come to it later. Remind me. Okay, spiritual capital of the world. Which are the most popular stories of India in the world?
Okay, Swami Vivekanand? For a long time. Snake charmers and bullock carts. You know, Nehruvian India was known as snake charmers India and bullock carts India. But again, I am asking, listen to my question carefully. Which are the most popular Indian stories in the world? कोई ने कुत्ता पूछता आपके फ्रीडम स्ट्रगल को दुनिया में, आप ही तुनतुना बजाते रहते हो गांधी जी को बेच बेच कर। बाकी दुनिया को आपके फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट पॉपुलर स्टोरी भारत की वर्ल्ड में कौन सी चलती है? वो तो अभी का है। मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज आई एम आस्किंग। गुड। आप में से कितने लोगों ने वाल्मीकि की, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है या महर्षि व्यास की महाभारत पढ़ी है? कहां से सुनी है? लॉकडाउन में देखी। वो रामानंद सागर की है, महर्षि वाल्मीकि की पूछी मैंने। हाँ, ओके, वो सुनिए। तो हम में से किसी ने भी ओरिजिनल वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत जो महर्षि व्यास ने लिखी वो नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी हमको सबको रामायण महाभारत पता है। उसके बारे में हमारे कुछ परसेप्शंस है और उसके आधार पर दुनिया के भी हमारे बारे में कुछ परसेप्शंस है। भारत के बाहर कम से कम 75 देशों में रामलीला होती है। भारत के बाहर कम से कम 11 ऐसे देश है जो अपने राजा को श्री राम बुलाते हैं और अपनी कैपिटल को अयोध्या मानते हैं। पता है हमको? सुना है कभी तो भी? थाईलैंड इज वन ऑफ देम, कोरिया इज वन ऑफ देम, इंडोनेशिया, बाली द्वीप इज वन ऑफ देम। सो महर्षि वाल्मीकि तो गए नहीं थे वहां पे, व्हाट्सएप भी नहीं था उस समय, but still we told and communicated our story even without invading that country, and we influenced so much that they started calling their king as Ram. Why? How? कैसे हुआ होगा ये? कभी हमने सोचने की कोशिश की है? Okay. When was Raja Rajendra Chola? इसको कहते हैं गूगली। समवेयर मेडिएवल क्या होता है? मेडिएवल कब से शुरू होता है? Okay, good. So 10th and 11th century is the period of Raja Rajendra Chola, but that is not a medieval period. Even from the Western parameters, it is not a medieval period. भारत के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, अभी गुजरात में है इसलिए मैं इससे शुरू करता हूं। कृष्ण का नाम आते के ही उनके साथ हमारे मन में किसका नाम आता है? हाँ, गीता पढ़ने वालों को अर्जुन का आता है, नहीं तो राधा का ही आता है।
राधा का नाम कृष्ण के साथ भारत में पहली बार कौन से पुस्तक में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी इन नैरेटिव बिल्डिंग। पता है किसी को? 10th सेंचुरी में भागवत पुराण में आता है। महर्षि व्यास का जो महाभारत है उसमें 8वें साल में कृष्ण वृंदावन से आपके द्वारका में आ गए। राधा जी तो बरसाना में थी, और उसके बाद सीधे कृष्ण जी जो महाभारत में आते हैं वो द्रौपदी स्वयंवर में आते हैं। तो 8 साल के बीच, 8 साल से लेकर द्रौपदी स्वयंवर तक कहीं पे भी फिर से वृंदावन में या दिल्ली की तरफ, उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ कहीं पे भी श्री कृष्ण जाने का संदर्भ ही नहीं है पूरे महाभारत में। तो लीलाएं कब की? गोपियां कहां से मिली? लेकिन हमारे पॉपुलर परसेप्शन में क्या है? कृष्ण मतलब गोपियां, गोपियां मतलब लीला, और उस पर मूवीज भी बना देते हैं, रासलीला। और हम में से किसी को कुछ लगता भी नहीं है कि यार ये आया कहां से। जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से राधा नाम की देवकी जी की एक दोस्त थी, मतलब उनके मां की दोस्त थी, जिनको कोई बाल बच्चा नहीं था, और इसलिए वो कृष्ण के पीछे पागल थी। मतलब जैसे किसी को बेटा नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, तो वो जो भी, जिसका भी बाल बच्चा, उसके पीछे एक वो था, लेकिन वो 8वें साल तक था। उसके बाद तो कृष्ण ही नहीं है वृंदावन में। लेकिन फिर भी पॉपुलर नरेशन कृष्ण का नाम आते ही राधा कृष्ण है। So many a times when there is no reality and still we start believing it to be real and we start building our perceptions on the basis of it, लीडरशिप के रोल में जाने के बाद सारा खेल जो शुरू होता है वो इस परसेप्शन का और नैरेटिव की लड़ाई का होता है। पहले दिन मान लीजिए आप कहीं पे जाते हो, नई जॉब लगी है या नया वर्क प्लेस है, और पहले दिन आपको आकर किसी ने बता दिया ये है ना वो आपकी जगह पे पहले वो थे ना, उनका आदमी है। तो वो उनका रहे नहीं रहे, वो आपसे अच्छा रहे नहीं रहे, आपके दिमाग में पहले से एक फ्रेम तय हुआ है कि वो इनका आदमी है। सो वट एवर दैट पर्सन इज बिहेविंग विथ यू will always be perceived with that prism. Narrative building is art of creating right prism. तो भारत के जो नैरेटिव्स है, जो चीजें आप लोग बता रहे थे, उन नैरेटिव्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज we ourselves have started believing about us what British wanted us to believe. मतलब it is fine now because there are some people coming from South India or outside India, so I have to speak in English. But otherwise हमारा एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है। जैसे आपने कहा ना, रिलीजन के बेसिस पर झगड़े होते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक मैप कभी
एक्सरसाइज करके देखिए, अगले 3 दिन में हुआ तो अगले 3 दिन में कीजिए, नहीं तो अपने अपने स्थान पर जाकर कीजिए। एक वर्ल्ड मैप लीजिए और वर्ल्ड मैप में पूरे विश्व में कौन कहां से कब गया, जिसके एविडेंसेस अवेलेबल है, इसका एक मैप बनाइए, ग्राफ बनाइए, एरोज बनाइए। मतलब मैं अभी तो बहुत पहले नहीं जाऊंगा कि भाई ग्रीक कब आए थे, या शक कब आए थे, हूण कब आए थे, उसके बाद फिर अरबस्तान से मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर अरब तुर्क आए, गौरी आया, फिर मंगोल आए, सबसे अंत में मंगोल आए, उसके बाद फिर वास्को द गामा आया, पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, डेन्स आए, सबसे लास्ट ब्रिटिश आए यूरोप से। अब हमको लगता है फ्रीडम स्ट्रगल भारत का मतलब 1857 टू 1947, एनसीईआरटी ने हमको उतना ही पढ़ाया। मजे की बात यह है कि ये भारत में तो 1498 में आया सबसे पहले वास्को द गामा, और उससे पहले बाकी के लोग आए, यहां पे ही नहीं आए, पूरे दुनिया भर में गए। दुनिया में जहां जहां गए वहां वहां पे ऑन एन एवरेज 50 टू 70 इयर्स के बीच में वहां की लोकल जो भी स्थानिक सभ्यता थी, भाषाएं थी, कल्चर था, रिलीजन था, देवी देवता थे, वो सारे ध्वस्त हो गए। In Africa, there is a famous saying, when the first time Europeans went to Africa, most of the African tribes had land and Europeans had only Bible. They asked them to close their eyes and pray for the God. By the time they opened their eyes, they had a Bible in their hand, the land was in European hand. इतने कम समय में कॉलोनाइजेशन हुआ। भारत एक अकेला ऐसा देश है जिस पर लगातार नोन पीरियड में 1000 साल तक लगातार आक्रमण होता रहा, फिर भी 1947 में जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा पार्टीशन होने के बाद भी, वो भारत फिर से भारत के नाते अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी देवी देवताओं को बचाते हुए जिंदा रहा। ये अकेला एक्सेप्शन है। आपके मन में क्या है? रिलीजियस के आधार पर झगड़े होते रहते हैं। मतलब ये नैरेटिव है, पॉपुलर नैरेटिव है, वर्ल्ड में भी है। व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज this land is the originator of maximum religions that accommodated maximum religions from outside. मजे की बात देखिए, पूरे भारत में एक साथ 47 क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस आज है, रजिस्टर्ड है, जो एक साथ अपने अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं। मेरा ही जीसस सही ये बताने की कोशिश कर रहा है। 47। और इस्लाम के हिसाब से तो 72 फिरके होते हैं। मजे की बात यह है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में यदि वो सुन्नी है तो उसमें शिया भी नहीं मिलता। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे इस्लाम के सारे फिरके मिलते हैं। ओनली कंट्री। उसमें बोहरा भी मिलेगा, उसमें ख्वाजा भी मिलेगा, अब ये सब होने के बाद हमने एक थ्योरी बाय कर ली, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने हमको बेची कि हम क्या है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। गलत नहीं है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि वेदर इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी और
ड्राइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि आप मूलतः अलग अलग हो, लेकिन जबरदस्ती आपको किसी ने एक करके रखा है। और ब्रिटिश कह के गए कि हमने आपको एक किया। उससे पहले तो आप राष्ट्र थे ही नहीं, यू वर नेवर अ नेशन। और इसलिए पंडित नेहरू अपने पहले भाषण में कहते हैं, वी आर नेशन इन द मेकिंग, वी हैव टू मेक अ मॉडर्न इंडिया। एक्चुअली वो कहना चाह रहे थे, वी आर स्टेट इन द मेकिंग। हम एक नया राज्य बना रहे थे। वी वर मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट द राष्ट्र वॉज एंशिएंट। द नेशन कॉन्स्टिट्यूट्स पीपल, कल्चर, their emotions, their common history and practices. That calls nation. But state constitutes government, constitution, sovereignty, the common control over land. हम भाषा अलग अलग बोलते रहे, हमारे देवी देवता अलग रहे, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कॉमन रहा। हमारे लिए काशी काशी था, गंगा गंगा था, द्वारका द्वारका थी। Irrespective of our language, our sacred geography had the same meaning from Himalaya to Indian Ocean. That made us nation. Unfortunately, हम इस नैरेटिव में फंस गए कि वी आर नेशन इन द मेकिंग। मजे की बात ऐसी है, जब डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करते, नैरेटिव बिल्डिंग के चक्कर में नहीं फंसना है, तो उसका एक मूल मंत्र है, नेवर गो बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, इंक्लूडिंग मी, including anybody who is telling you here in this workshop, whatever it is, wherever you feel, go to the original source. Try and get the original reference, verify yourself, raise the doubt. उसके आगे कुछ पूछना है तो और पूछिए, and then build your own perception. तो ये जो सारा नरेशन खड़ा रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा वास्को द गामा भारत में किस लिए आया था? ट्रेड के लिए आया था, स्पाइसेस के लिए आया था। अब उसको कैसे पता चला? भारत तो गरीब देश था अंग्रेजों के हिसाब से, आपस में लड़ रहे थे सब, एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। राहुल गांधी जी तो हमको बताते थे कि मेरे दादाजी परदादाजी से पहले तो भारत था ही नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू जी ने दिया, उससे पहले इंडिया था कहाँ? गुजरात में आकर बोलकर गए ना। If there was no India, तो पोर्तुगीजों ने अपनी कंपनी का नाम तो ईस्ट कालिकत कंपनी रखना चाहिए था, या फिर ब्रिटिशों ने तो अपनी कंपनी का नाम ईस्ट सूरत कंपनी रखना चाहिए था, क्योंकि पहली सूरत में बनाई थी उन्होंने, या फिर ईस्ट बंगाल कंपनी रखना चाहिए था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा? हैं? How did they come to know that there is a country called India and it has got spices? ये कहां से पता चला? देखिए, हम बाहर जाते नहीं थे, हमारे पास जहाज नहीं थे, वो हमारे यहां आए नहीं थे, इंडिया नाम का कोई कंट्री नहीं था। उनको पता चला कैसे कि ये इंडिया है और यहां पे स्पाइसेस है? उस समय सैटेलाइट्स थे नहीं, वीडियो कैमरे से कॉल नहीं होते थे, तो हाउ डिड दे कम टू नो विच इज द फर्स्ट बुक ऑन इंडिया बाय एन यूरोपियन?
अभी तो उसके कुछ ही अंश उपलब्ध है, लेकिन बुक का नाम है इंडिका। मैगस्थनीस नाम का एक ट्रैवलर आया था, किसके साथ आया था जी? इन्वेडर एक्चुअल लिंक, वो तो सेल्यूकस तो उसका सेनापति था, किंग वॉज अलेक्जेंडर। क्या कहते हैं उसको आप लोग? और उसके साथ क्या कहते हैं फिल्मी भाषा में? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो जीता। इसके आगे क्या कहना? जो भारत में आके हारा वो सिकंदर। नैरेटिव क्या होना चाहिए था? जो भारत में आके हारा, निकला था तो पूरी दुनिया जीतने के लिए, लेकिन जो भारत में आके हारा सिंधु नदी के किनारे वो सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर नहीं है। नैरेटिव। पूरा परसेप्शन अपनी तरफ देखने का भी बदल जाता है कि जो ग्रीस से निकला, पूरा यूरोप जीतते हुए, पूरा एशिया जीतते हुए इंडस तक आया, और इंडस पर आने के बाद 13 बार पोरस से हारा, 14वीं बार पोरस पकड़ा गया तो उसको मार दिया, और उसके बाद चंद्रगुप्त ने उसको हराया। जो बार बार प्रयास करने के बाद भी भारत को कभी जीत नहीं पाया, और अंततः उसकी बेटी को चंद्रगुप्त तो बिहा के वापस जाना पड़ा। और अफगानिस्तान पार करने से पहले मर गया। वो हारा हुआ है। 3 कैरेक्टर्स आप इतिहास में देख लीजिए। एक है अलेक्जेंडर, दूसरा वैसे ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है नेपोलियन। यदि बैटल ऑफ वाटरलू आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उससे पहले का जो सारा फ्रांस का राइज है और पूरा यूरोप का यूनिफिकेशन है, जैसे बिस्मार्क का एक रोल रहा वैसे नेपोलियन का एक रोल रहा। लेकिन इन दोनों के बारे में क्या हुआ देखिए। अलेक्जेंडर जीतता हुआ आ रहा था, हार गया, हारने के बाद वापसी में 3 महीने के अंदर मौत हुई। वापसी में एक भी सैनिक उसके साथ जाने को तैयार नहीं था, उसका साथ देने को तैयार नहीं था। हारे हुए राजा के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। नेपोलियन रशियन फौजों से वाटरलू में हार गया। जब तक जीत रहा था उसके पैसे पर सब लोग उसके साथ खड़े थे, और लंबा समय लड़ने के बाद भी उसके साथ खड़े रहने वाले, जब वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन पकड़ा गया, 24 घंटे के अंदर उसकी सेना पलट गई, रशियन फौजों के साथ हो गई। कोई नेपोलियन का नाम लेने वाला नहीं रहा। उनको हम ग्रेट कहते हैं। भारत में एक ऐसा अद्भुत उदाहरण होकर गया, जिनके कोरोनेशन के अभी 350 वर्ष है। किसके है? छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के 350 ईयर्स है दिस ईयर, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज on 6th of June 1674, after almost 400 years, first native Hindu king was getting coronated as Chhatrapati. क्या हुआ? नींद आ रही क्या? क्या बीच में ये आ रहा है ना, तो now see the magic of this person.
इसने कोई दुनिया नहीं जीती। जब उसका मैक्सिमम राज था तो पुणे के नॉर्थ से शुरू होता था और साउथ में तंजावुर तक था। हाँ ठीक है, कभी औरंगजेब को चकमा दिया, कभी अफजल खान को मार दिया, लेकिन दिस स्मॉल किंगडम 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, उनके कोरोनेशन के 6 इयर्स के बाद में। कैसा विचित्र व्यक्तित्व होगा कि उनके नाम पर 1857 तक शासन चलता है, 1857 तक, टिल ब्रिटिश कंप्लीटली टेक ओवर। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, एवरीबडी इज फाइटिंग इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज। मल्हारराव होळकर, महादजी शिंदे, when they go to Delhi and win over Delhi, 1771 से लेकर 1818 तक ब्रिटिशों से वसई में हारते हैं पहली बार मराठे, तब तक मुगल मराठों को टैक्स दे रहे। हमारे परसेप्शन में क्या है, ब्रिटिश आने से पहले मुगल थे। मुगल्स वेर पेइंग टैक्सेस टू मराठास। सिंबलिकली कोई दिल्ली में शासन करने वाला चाहिए, इसलिए बहादुर शाह जफर को तलवार दिखाकर तात्या टोपे कहते हैं कि इस गद्दी पर आपको बैठना है। तो वो कहता है कि मुझे तो चांदनी चौक के आगे भी कोई नहीं जानता। दिल्ली में लाल किला है, लाल किले के सामने चांदनी चौक है। तो वो कहता है कि चांदनी चौक के आगे भी मेरे ऑर्डर्स कोई नहीं मानता, मैं यहां बैठकर क्या करूंगा। तो तात्या टोपे उनको कहते हैं कि आपकी मोगलाई दिखाने के लिए नहीं बैठने को कह रहा हूं, इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमको कोई सिंबल चाहिए, इसलिए आपको बिठा रहा हूं। खैर आखिर में उसी के लोगों ने गद्दारी की, इस वजह से 1857 आ रही, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हाउ नैरेटिव्स आर बिल्ड। नैरेटिव बिल्डिंग में सिलेक्टिव फैक्ट्स के आधार पर सिलेक्टिव स्टोरीज, उन सिलेक्टिव स्टोरीज का अजेंडा बेस्ड इंटरप्रिटेशन, और उस अजेंडा बेस्ड इंटरप्रिटेशन के आधार पर पॉलिटिकल परसेप्शंस ये क्रिएट किए जाते हैं। और ये केवल, मैं अभी तो भारत का उदाहरण दे रहा हूं इसलिए ग्रैंड स्केल पर है, लेकिन ये अपने पर्सनल लाइफ में भी होता है। आपके सीनियर ने बता दिया, वो टीचर है ना, वो सर है ना, वो बड़े खड़ूस है, तो आप क्लास में जाने से पहले ही परसेप्शन लेकर जाते हैं। द स्टोरी इज ऑलरेडी बिल्ट। So the stories are built to create narratives based on certain perceptions and values. और इसी कारण से वो परसेप्शन ऐसा होता है, या नैरेटिव बिल्डिंग एक ऐसा चश्मा है जो हम खुद भी पहनते हैं और दूसरों को भी पहनाते हैं। Those stories become a spectacle for yourself and for others. तो आप भारत को कैसे रखना चाह रहे हो स्टोरीज के थ्रू? भारत में कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस है क्या? है। भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस है क्या? है। मैं लगभग ये जब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा ये शुरू हुआ सेलिब्रेशन, तो आई वॉज पार्ट ऑफ a special committee for प्रसार भारती to make shows on आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उस समय मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने का मौका मिला। इंटरेस्टिंगली 1940 तक पूरे भारत के इतिहास में कहीं पे भी गलती से भी एक भी एग्जाम्पल नहीं है जहां पे भारत के लोग आपस में भाषा के आधार पर लड़े हो। सारी भाषा की लड़ाइयां इंडिपेंडेंस की बात वाली है। ब्रिटिशों ने 1919 में पहले लिंग्विस्टिक आधार पर यूनिट्स बनाए,
क्योंकि उनके यहां पे लैंग्वेज ये नेशन स्टेट का आधार था। भाई जब जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले एक देश नहीं हो सकते, गुजराती और मराठी बोलने वाले कैसे हो सकते हैं? उनके लिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। प्रॉब्लम यह हुआ कि हमारे यहां के लिखे पढ़े लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू को रियल नैरेटिव मान लिया, एंड वी स्टार्टेड डिमांडिंग कि हम गुजराती है, हमारा अलग स्टेट चाहिए, हम तेलुगु है, हमारा अलग स्टेट चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज है, उसके लिए काम करो, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट ये भारत की कभी भी कंसेप्ट ही नहीं थी, बिकॉज गवर्नेंस वॉज ऑलवेज अ इश्यू ऑफ टेरिटोरियल कन्वीनियंस, नॉट लैंग्वेज। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपना राज्याभिषेक करते हैं तो एक ऑर्डर पास करते हैं, आज्ञा पत्र कहते हैं उस समय उसको, आज के जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ कहते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास होती है, तो उन्होंने एक आज्ञा पत्र निकाला है। तो उस आज्ञा पत्र में वो लिखते हैं हर 20 कोस पर भाषा बदलती है, एवरी 20 माइल्स language changes, and therefore whatever orders I am passing from Raigad, which was his capital, it has to be translated in the local language. So every 20 miles there has to be a translator who can translate my orders written in Prakrit Marathi in the local language. No person in my state, आखिर अदरवाइज आज आप कोर्ट में चले जाइए, आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, एंड स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम लीगल फ्रैटर्निटी, प्लीज सीरियसली थिंक ऑफ इट। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड? नोबडी? सरप्राइजिंग। तो छुपे हुए वकील है। इन द सुप्रीम कोर्ट आई हैव डन दिस। दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है, राज्य का काम जो होता है वो झगड़ा सुलझाने का होता है। आज की स्थिति क्या है? इन 80% ऑफ द केसेस स्टेट इज द लिटिगेंट। अगेन दिस इज अन इंडियन प्रैक्टिस, दिस इज अ ब्रिटिश प्रैक्टिस। लेकिन उससे मजेदार चीज ऐसी है कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी कुछ केस चल रहा है, तो आप कभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आपके लोकल कोर्ट में जाकर उसको पूछिए, जिसकी केस चल रही है उसका हियरिंग होने के बाद, उसको बाहर निकलने के बाद पूछिए कि आज तुम्हारे केस में क्या हुआ, तो वो बताएगा कि मेरे वकील को पता और जज को पता, मुझे क्या चल रहा है वो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगली डेट मिल गई, हार गया है जीत गया तो वकील समझा देगा, वकील को फीस दे दूंगा। मैंने क्या कर दिया? मेरे इश्यू को इस तरह से आउटसोर्स कर दिया कि उसका क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। हियर इन 1674 शिवाजी महाराज इज सेइंग एवरी ऑर्डर दैट आई एम पासिंग शुड बी ट्रांसलेटेड इन अ लोकल लैंग्वेज। अब मैं इंग्लिश में नहीं बोला तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये इस आदमी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो भी नैरेटिव है ना, स्कॉलर जो होता है वो इंग्लिश में ही बोलता है, इसलिए बीच बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। गुजराती में बोलने वाला बैकवर्ड होता है, आधे लोगों को कॉन्फिडेंस इसी वजह से नहीं है, वो बोलते हुए ही समझ रहा था। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गुजराती में बोलूंगा तो बाकी लोग क्या समझेंगे, इसका डर है। मैं हिंदी में बोलूंगा तो बाकी लोगों का मेरे बारे में परसेप्शन क्या होगा, यह डर है। क्या सही है ना? हा? जो भी बोलो कन्विक्शन के साथ बोलो, जिस भी भाषा में बोलो। थॉट की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। बट एक परसेप्शन बन गया, एक नैरेटिव खड़ा किया। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग की एक प्रोसेस होती है। दो नैरेटिव्स के बारे में चर्चा करूंगा मैं, पहले वो बात पूरी कर लेते हैं। भारत इज नॉट अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स, वी हैव अ यूनिक कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी।
एक ऐसा यूनिक कल्चर है जहां पे एक ही थॉट को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. वी डोंट से माई वे इज द ओनली वे, माई गॉड इज द ओनली गॉड. We say, my God also can be a God. So we just come up with diverse expression of same inherent truth. And therefore, the truth is one. The sages have explained it differently. Ekam sad vipra bahuda vadanti. That is what is called in Sanskrit. The truth is one. The sages explain it differently. तो शंकराचार्य ने बताया या बुद्ध ने बताया, हमको फर्क नहीं पड़ता. उस समय जिसको जिसका कन्विक्शन लगा उसको उसने फॉलो किया. गुजरात में नया साल सेलिब्रेट होता है. कब होता है? दिवाली के समय होता है. लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन नई चौपड़ी खुलती है, उसके दिन नया साल शुरू होता है. महाराष्ट्र में जो है वो गुड़ी पाड़वा होता है, वर्ष प्रतिपदा होता है चैत्र मास में. कर्नाटक में जाते हैं तो होता उसी समय है, लेकिन उसको उगादी कहते हैं. केरल में चले जाते हैं तो वो और आगे चला जाता है, जून तक आता है, उसको विशु कहते हैं. तमिल में उगादी होती है, लेकिन वो जो उसको वो चैत्र उगादी कहते हैं, लेकिन वो अपना नया साल ये पोंगल मानते हैं. पंजाब में चले जाते हैं तो वो चैत्र में नहीं आता, वो बैसाख में आता है, उसको वो बैसाखी कहते हैं. असम में चले जाएंगे तो बैसाखी के दिन ही आता है, लेकिन उसको बिहू कहते हैं. ये दिखने हुए अलग अलग दिखता है. पढ़े लिखे लोगों को पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हमारे न्यू ईयर अलग अलग है, इसलिए हम कन्वीनियंटली 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं. अनपढ़ व्यक्ति को पूछेंगे तो बताएगा कि ऐसा है कि मेरे यहां का क्रॉप सीजन इस महीने में खत्म होता है, नया क्रॉप सीजन यहां से शुरू होता है, इसलिए हमारे नए साल का साइकिल जो है वो यहां से शुरू होता है. ये अनपढ़ को पता है. जो अंग्रेजी पढ़े लिखे उनका प्रॉब्लम है. तो उनको लगता है चलो पूरी दुनिया 31 दिसंबर मनाती है, हम क्यों पीछे रहे. मनाओ, प्रॉब्लम नहीं है. उसका कोई लॉजिक नहीं है. और लॉजिक क्यों नहीं है? कब शुरू हुए ये जनवरी महीना, कब आया? 1 जनवरी महीना कब सेलिब्रेट हुआ, पता है किसी को? राइट, बट व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड? उस कैलेंडर को कहते क्या है? या जो इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसको कहते क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर. देयर वॉज समथिंग कॉल्ड पोप ग्रेगोरी, जिसको पहली बार यह ध्यान में आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर कैलकुलेशन. व्हाट वाज रॉन्ग? तो ओरिजिनल रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने थे, ओनली 10 मंथ्स. तो मार्च स्टार्ट होता है ना, मार्च, एनसीसी में वगैरह रहे तो मार्च ऑन कहते हैं ना. दैट मार्च, दैट बिगिनिंग वाज मार्च. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज 7, अक्टूबर इज 8, नवंबर इज 9, डेसिमल दिसंबर इज 10. खत्म.
ये तो पृथ्वी के चक्कर के साथ मिल नहीं रहा है। तो क्या करना? तो उस समय का एक राजा था जेन्युकस नाम का, उसके नाम से ग्रेगरी ने एक नया मंथ ऐड कर दिया 31 डेज का, वो जनवरी बन गया। फिर भी जम नहीं रहा है, फिर 30 दिन का फेब्रुवरी डाला गया। 1492 आते आते ये कैलेंडर सेट हुआ है, जस्ट 5700। अब ये क्यों था? तो सारा मॉडर्निटी का वहां का जो डिबेट है, जिसको मतलब हमारे दिमाग में भी है ना, पैंट शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है तो मॉडर्न है, इंग्लिश बोलता है तो मॉडर्न है। लेकिन व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ मॉडर्निटी? किसको मॉडर्न कहते हैं? मॉडर्न थिंकिंग होता है। मॉडर्न थिंकिंग क्या होता है? You don't accept any of the principles as it is. You question them on the basis of rationality, scientific temper. Every individual has a right to ask question. That was the beginning of modernity. But what was the first question of modernity? कौन सा प्रश्न पूछा गया था सबसे पहले, जिसके कारण सारा यूरोप में बवाल शुरू हुआ? गुड। किसने पूछा? गुड। कोपरनिकस बाद में आया, पहले गैलीलियो, फिर ब्रूनो और फिर कोपरनिकस। गैलीलियो ने सबसे पहले he said that the earth is spherical. Bruno said earth is not just spherical, but even the sun is spherical. और कोपरनिकस उसके आगे गया और उसने कहा it is not the sun that is revolving around earth, earth is revolving around sun. ये किसको पूछ रहे थे? वो किसको कह रहे थे? चर्च को। चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना यह मॉडर्निटी का पहला क्वेश्चन था। अब जिनकी अर्थ ही फ्लैट थी और सन अर्थ के चक्कर लगा रहा था, वो 12 महीने गिनेंगे कैसे? क्योंकि साइंस ही नहीं था। देयर वॉज नो साइंटिफिक प्रिंसिपल टू मेक अ कैलेंडर, और इसलिए कैलकुलेशन की गड़बड़ी थी। कभी 289 डेज थे, कभी 344 डेज थे, 365.5 डे। ये कैलकुलेशन करने वाला पूरी दुनिया में पहला देश भारत है, जिसको हम बैकवर्ड मानते हैं। और इसीलिए भारत में 14.5 डेज का पखवाड़ा होता है हर मंथ का। तो हमारे ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो कैलकुलेशन है, उसके पीछे का लॉजिक इस साइंस से है। तो झगड़ा किस पर था? अर्थ फ्लैट है या गोल है? हम लोग भी ज्योग्राफी पढ़े हैं कभी ना कभी स्कूल में, अर्थ का स्टडी किया है। कितने लोग गुजराती में पढ़े हैं ज्योग्राफी? ज्यादातर लोग पढ़े हैं। क्या कहते हैं आप लोग जो ज्योग्राफी को गुजराती में क्या कहते हैं? पक्का ना? जब से अर्थ का स्टडी शुरू हुआ, भारत में भूगोल ही है। भूगोल और खगोल, इसका फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस भारत के इतिहास में 3150 ईयर्स बीसी में है, बिफोर क्राइस्ट। मतलब अभी के ये 2300 साल 2200 साल भूल जाइए, उससे पहले 3100 साल 3150 साल, सो मोर देन 5000 years ago, our scientists who were called as rishis,
had already defined earth as goal, Khagol, that is the universe, as spherical, and the distances between all the important satellites, even the distance between the earth and the moon, on the basis of which we actually defined our days and nights. And that's why the calendar is more scientific. But European colonization has created certain impressions about ourselves, and we started believing that perhaps we didn't have anything. They created an elite class who started teaching. इसके बारे में पहला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया वो एजुकेशन में किया. 1784 से लेकर 1933 तक, 1833 तक, for 50 years almost, they studied India systematically. They prepared the gazettes of Indian districts. हर डिस्ट्रिक्ट में कौन से भाषा बोली जाती है, कौन से देवी देवता है, कौन से त्योहार है, कौन सी जातियां है, कौन सा स्किल सेट है, कौन सा ट्रेड है, इसका सिस्टमैटिक अध्ययन किया. और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने, यदि, क्योंकि उनके मन में भी प्रश्न था, जो प्रश्न मैंने खड़ा किया, हमारा मूल प्रश्न क्या होना चाहिए फॉर ईच विच एवर डिसिप्लिन यू आर कमिंग फ्रॉम, व्हाट शुड बी आवर फंडामेंटल नैरेटिव बिल्डिंग क्वेश्चन फॉर भारत. इफ each and every civilization, country, society got evaporated after invasion of either Islam or European Christianity, they got completely destroyed. What was so special in us that we survived? ऐसा क्या था हम में कि हम उसमें पूरी तरह से बह नहीं गए? नुकसान हुआ, देश का विभाजन हुआ, हमको आजकल एक दूसरे से बात करने में अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है संस्कृत छोड़कर. हाँ? लेकिन इसका हमने कभी भी हमारे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एकेडमिक स्टडी नहीं किया, क्योंकि हम भी माने, उन्होंने बता दिया और हमने भी मान लिया कि पोर्तुगीज और ब्रिटिश हमारे लिए ट्रेड के लिए आए थे. वास्को द गामा ने एक डायरी लिखी है. वास्को द गामा अकेला नहीं निकला था, उससे पहले कोलंबस निकला था 1494 में, फिर ब्रुक्स निकला, फिर व्हाइट निकला, रॉबर्ट्स निकला. ये सब लोग निकले 1494 टू 1498 के बीच में. दे स्टार्टेड एज पर द ट्रीटी ऑफ थेसिडलस. ये ट्रीटी हुई थी स्पेनिश और पुर्तगीज राजा के बीच में, और पोप ने इन दोनों के झगड़ा सुलझाने के लिए कहा कि भाई वेस्ट का साइड जो है वो स्पेनिश को जाएगा, ईस्ट का साइड जो है वो पुर्तगीज को जाएगा. तो वास्को द गामा की जो डायरी है उसका नाम है फर्स्ट वोएज. फर्स्ट वोएज. वास्को द गामा लिखता है कि मैं प्रिंसटन जॉन नाम के एक क्रिश्चियन राजा की खोज में भारत के लिए निकला. स्पाइसेस मिलना एक्सीडेंट था. वास्को द गामा कभी भी भारत में ट्रेडिंग के लिए नहीं आया था. पोप के कहने पर उसके राजा ने उसको जो चार्टर दी थी वो स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पोप एंड चर्च थी. इसलिए पोर्तुगीज जो इंक्विजिशन हुआ गोवा में खास करके, वैसे वो साउथ में भी प्रयास किया, लेकिन खास करके जो गोवा में हुआ उसमें ब्रूटली इस्लाम ने जैसे किया वैसे ही वहाँ के मंदिर गिराकर चर्च बनाना, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना, महिलाओं को जिंदा जलाना, ये सारा पोर्तुगीज इंक्विजिशन में हुआ, बिकॉज इट वॉज द मैंडेट, रिलीजियस मैंडेट टू डू दैट. मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने लिखी हुई अपने बुक नहीं है, वास्को द गामा अपनी डायरी में लिख रहा है. तो मैं उसका मानूं या रोमिला थापर का मानूं?
हम रोमिला थापर का मानकर मान लेते वो ट्रेड करने के लिए आया था। अच्छा, आया किसके दरबार में था? कैलिकट पहुंचा था। कौन था वहां पे उस समय? हाँ, जैमोरिन। जैमोरिन नाम से वो जाना जाता है क्योंकि वास्को द गामा ने उसको जैमोरिन कहा, क्योंकि वो क्रिश्चियन राजा की खोज में आया था। तो हम भी समझते हैं हाँ सही में होगा कोई जैमोरिन नाम का क्रिश्चियन राजा। तो उसका नाम था मानविक्रमा, लेकिन उसको जो पदवी मिली थी, उसको जो टाइटल था, वो था सामुद्रिन। समुद्र से आया सामुद्रिन, समुद्र यानी सी। सो द प्रोटेक्टर ऑफ सी, जिसको सी रूट पर चलने वाले जहाजों पर उनको सुरक्षा देना, उसके अगेंस्ट टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, इसलिए उसको नाम मिला सामुद्रिन। अब उसको सामुद्रिन बोलने के लिए नहीं आया तो उसने उसको जामोरिन कर दिया। हमारे एनसीईआरटी ने हमको जामोरिन पढ़ा दिया। हमने भी पूछा नहीं है जामोरिन कहां से आया। हाँ? अजीब नहीं है, वो पोर्तुगीज सामुद्रिन लिखता तो शायद हम भी सोचते यार समुद्र से जुड़ा हुआ कुछ है। तो ये इसके कारण हुआ क्या? अब मैं जब ये एक स्टोरी डिकोड करता हूं वास्को द गामा की डायरी पर, तो कितने मिथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। हम इंडियन ओशन की ट्रेड को यदि पूरा हमारा राजा संरक्षण दे रहा था और 300 साल तक दे रहा था, मानविक्रमा डायनेस्टी 350 ईयर्स की डायनेस्टी रही है मेडिवल पीरियड में। तो 350 साल तक यदि वो चाइनीज और अरब ट्रेडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो हमारे पास एक भी जहाज नहीं होगा। वास्तविकता यह है, 11वीं शताब्दी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है उज्जैन में, 1100 ट्रेडर्स का, और उसमें गुजराती ट्रेडर्स बहुत सारे थे। वास्को द गामा की डायरी में भी गुजराती ट्रेडर्स के नाम हैं, उसमें से एक नाम चंदन है। और आपके ये कौन सा पोर्ट है? कांडला नहीं, मोरबी के पास का कोई एक नहीं, ये तो सारे नए पोर्ट है। प्राचीन एक पोर्ट था जिस लोथल सिटी थी। नहीं, लेकिन वो था चंदन मोरबी के आसपास का कहीं के। वहीं वहां पे अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जापानीज डेलीगेशन के साथ एक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे। बताऊंगा, याद आ जाएगा। तो वो कहता है कि समुद्र में मैं रास्ता भूल गया और मुझे एक गुजराती ट्रेडर मिला जिसका जहाज मेरे जहाज से 3 गुना बड़ा था, मांडवी, और मुझसे 3 गुना बड़ा था, और वो रेगुलर गुजरात कोस्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक ट्रेड का रूट उसको आंखें बंद करके पता था। हमको क्या पता है? ब्रिटिशों ने हमको नेवी सिखाई, नैरेटिव बिल्डिंग। ब्रिटिश जहाज लेकर जब निकले भी नहीं थे, उससे पहले से 1000 वर्ष पहले से हमारे यहां से पुरी से एक यात्रा चलती थी, आज भी चलती है। अंतर इतना हो गया है कि उस यात्रा के दिन, ये पूर्णिमा के दिन चलती है, जब रक्षाबंधन होता है, उस दिन वो यात्रा चलती थी। उस दिन सही में जहाज चलते थे वहां से। आज पूरी उड़ीसा में जो है जगन्नाथपुरी, उसके समुद्र में एक दिया और कागज का जहाज बनाकर छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं बाली यात्रा। इंडोनेशिया में जो बाली है, वहां से
गुजरात का ट्रेड रूट ये अफ्रीका और आज के दुबई जो वेस्ट एशिया है वहां तक जाता था, और पुरी और विशाखापट्टनम का जो रूट है वो सिंगापुर और इंडोनेशिया तक जाता था। और हमारे सारे ट्रेड रूट्स ये विंड्स पर कनेक्टेड थे, क्योंकि हमने कभी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के आधार पर जहाज नहीं चलाए, तो वो विंड के आधार पर चलते थे। इसलिए रक्षाबंधन के समय तक जहाज ये पुरी से होकर बाली तक जाते थे, और दशहरे तक वो फिर से घूमकर विशाखापट्टनम तक आते थे। तो उनको केवल सी रूट नहीं पता थे, सी रूट में बदलने वाले विंड्स के ट्रेंड भी पता थे, जिसके आधार पर वो जहाज लेकर जाते थे। तो जैसे मुझे यह प्रश्न मन में आता है कि हमारे पास क्या था कि हम इतने साल, इतने वर्ष जिंदा रहे, इतने आक्रमणों के बाद भी बचे रहे। तो यह प्रश्न ब्रिटिशों के मन में भी था, और इसलिए उन्होंने भारत का एक सिस्टमैटिक स्टडी किया और भारत के नैरेटिव्स तैयार किए। 1784 में पहला गैजेट बना। डिस्ट्रिक्ट वाइज भारत का एक मैपिंग करना उन्होंने शुरू किया। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर को बुलाकर उनकी कॉन्फ्रेंस साल में एक बार होने लगी, जिसके बेसिस पर 1811 में पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोस्टन के नाम से एक वहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन था जो चर्च के बड़े क्लोज था, उसको ये ध्यान में आया कि ये संस्कृत नाम की कोई लैंग्वेज है, जिसके कारण इनके यहाँ पे एक अध्ययन करने की परंपरा विकसित हुई है, परस्पर कम्युनिकेशन की एक सिस्टम डेवलप हुई है। नॉलेज क्रिएशन तो उसमें होता है, लेकिन उसका डिसेमिनेशन जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में होता है। इसमें से ये ज्ञान का अर्जन करने वाले अलग अलग जो साधु संत महर्षि जो है, वो कभी हिमालय में, कभी मठ मंदिरों में, कहीं पे ध्यान करते हुए, अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अध्ययन करते हैं। लेकिन इनके जब त्योहार होते हैं, यात्राएं होती है, मेले होते हैं, तो उस समय उन लोगों को इस तरह से उस जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, द नॉलेज दैट दे हैव गेन, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस। और उसके बारे में मैक्स म्यूलर जब लिखता है, द पिनेकल ऑफ दिस ट्रांसमिशन प्रोसेस इज कुंभ। तो कुंभ के मेला ये सारे अखाड़ों का मेला होता है। इसका मतलब सारी ज्ञान परंपरा के लोग इकट्ठा आकर अपने अपने शिष्यों को भारत के अलग अलग भागों में जाकर क्या आगे का, अगले साल भर का, अगले 4 साल का ज्ञान देना। और ये 12 साल में ये चक्र पूरा होता है, तब तक एक नई जनरेशन आती है, इसलिए ये 12 साल का चक्र है। इसका उन्होंने सिस्टमेटिक अध्ययन किया। अब इसको तोड़ना है तो क्या करना? तो सबसे पहले संस्कृत को डेमोनाइज करो और डिस्क्रेडिट करो। मैक्स म्यूलर को जो मैंडेट मिला, उस समय 10,000 पाउंड की फेलोशिप मिली थी, और मैक्स म्यूलर उस समय के इसमें भारत के संस्कृत फेलोशिप किस लिए मिली है? भारत के संस्कृत ग्रंथों का क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना, उसकी फेलोशिप मिली है। उसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन की रचना हुई 1824 में, जिसको कहा गया एशियाटिक सोसाइटी। उस एशियाटिक सोसाइटी ने इस भारत के सारे ग्रंथों का, सारे गैजेट्स का अध्ययन करके भारत को अलग अलग फॉल्ट लाइंस में बांटा। पहली फॉल्ट लाइन बनी आर्य एंड द्रविड़, दूसरी बनी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस, तीसरी बनी मंगोलियन रेस एंड आर्यन रेस, चौथी बनी वो कास्ट की फॉल्ट लाइन। उसमें पहले तो उन्होंने मार्शल कास्ट एंड नॉन मार्शल कास्ट इतना ही किया था, लड़ने वाली जातियां और न लड़ने वाली जातियां।
फिर उनको ध्यान में आया कि यार ये केवल लड़ने वालों को अलग करके फायदा नहीं है, इनका दिमाग चलाने वाले और कोई है, तो वो फिर टारगेट करना शुरू किया ब्राह्मण। तो ये सारा कैटेगराइजेशन जो शुरू हुआ वो 1831 के सेंसस से शुरू हुआ। उससे पहले भारत के किसी भी स्कूल में अपना दाखला करवाने के लिए जाति लिखने का उल्लेख नहीं है, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है। इसके आधार पर एक बुक लिखी है आचार्य धर्मपाल। ब्रिटिशों ने उस समय के बंगाल और मद्रास प्रोविंस में भारत की एजुकेशन सिस्टम जो थी उसका जो अध्ययन किया, उसके आधार पर धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल ट्री। हाउ अ ब्यूटीफुल ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के लिए। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था, तो 1833 में फिर मैकोले के मिनट्स आए और उसके आधार पर 1838 में पहली बार भारत में सरकारी नौकरी और एजुकेशन के लिए इंग्लिश एक मैंडेटरी लैंग्वेज बन गई। उससे पहले भारत में कहीं पे भी सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षा के लिए लैंग्वेज इंपोजिशन का कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक ज्ञान संस्कृत में था, व्यावहारिक जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज था, जो ट्रेड बेस्ड नॉलेज था, जो स्किल बेस्ड नॉलेज था, वो लोकल लैंग्वेजेस में था। जिसको वैदिक ज्ञान में अध्ययन करना है उसको मठ मंदिरों में जाना पड़ता था। जिनको सेक्युलर ज्ञान लेना है, जिनको प्योरली खेती से जुड़ा हुआ, ट्रेड से जुड़ा हुआ, हाथ से जो भी उस समय काम होते थे उससे जुड़ा हुआ, वो नॉलेज लेने के लिए रेगुलर स्कूल्स में जाना पड़ता था। हर 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक गुरुकुल चलता था। उस गुरुकुल को कोई भी राजा के भरोसे नहीं चलता था। समाज जो उनको दान देता था उसके भरोसे वो गुरुकुल चलते थे। एक भी स्टूडेंट को 1 पैसे का फीस जमा नहीं करना पड़ता था। ज्ञान बेचना ये पाप माना जाता था। ये ब्रिटिश लिख कर गए, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ओरिजिनल रेफरेंसेस आप पढ़िए। लेकिन हम कितने खराब नैरेटिव के साथ जी रहे हैं। भारत की आने वाली स्टोरी 25 वर्षों की यदि बदलनी है तो वो एआई के बेसिस पे नहीं बदलने वाली, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नहीं बदलने वाली। भारत की स्टोरी बदलनी है तो आपको भारत के इतिहास के संदर्भ में अपने परसेप्शंस और नैरेटिव्स अपने समाज में जो बने हुए हैं उनको पहले ठीक करना होगा। एक लास्ट नैरेटिव बताता हूं फिर खत्म करूंगा, मुझे भी निकलना है, ट्रेन पकड़नी है। नहीं तो मैं और आपको 3 दिन बहुत सारे नैरेटिव्स की कहानियां सुना सकता हूं। एक पॉपुलर नैरेटिव है, भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, सारी महिलाएं सती जाती थी, शिक्षा का कोई अवसर नहीं था, घूंघट प्रथा में बंद थी। नहीं, आज अभी जींस पहन रही हो आप, लेकिन पर नैरेटिव यही है। तो फिर नैरेटिव ऐसा क्यों है? जी ए भैया, सीता जी राम जी के घर गई थी या राम जी सीता जी के घर गए थे? फालतू में कुछ भी आप मैट्रियार्कल, पता है एक वर्ड इसलिए बोल दिया, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? माता के नाम से वंश चलेगा। इसका मतलब शादी करके लड़का लड़की के घर जाएगा। तो मुझे बताइए ना, रामायण में सीता जी राम जी के घर गई थी, राम जी सीता जी के घर गए थे? मैट्रियार्कल थी तो मैट्रियार्कल के उदाहरण भी दीजिए ना।
है, बहुत सारी डायनेस्टीज में ऐसा रहा है, मेघालय में रहा है, नागालैंड में रहा है, केरल में अभी भी प्रॉपर्टी राइट्स में है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एकेडमिकली भारत में सती प्रथा थी, ये नैरेटिव कहां से आया एंड हाउ डिड इट कम? राजा राम मोहन रॉय की भाभी सती गई थी, ये सच है, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये भी सच है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि भारत के दो ही हिस्सों में सती प्रथा बनने के, इक्का दुक्का बाकी कहीं पे उदाहरण होगा तो होगा, लेकिन सती प्रथा बन गई थी समाज में, ये दो ही जगह पे दिखता है और दो ही अलग अलग जातियों में दिखता है, राजस्थान में राजपूत और बंगाल में ब्राह्मण। इन दो समुदायों में पति के निधन के बाद महिला उसके साथ सती जाती थी, लेकिन यह भी प्रथा नहीं बनी थी। यह प्रथा बाद में डिस्टॉर्ट हुई, इनके भाभी के साथ शायद जबरदस्ती से हुई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यह हुआ इस कारण से क्योंकि ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन देयर वाज अ प्रैक्टिस, इस्लामिक प्रैक्टिस जैसे अभी हमास वाले कर रहे हैं, तो सामने वाले को हराया या मार दिया तो उसकी पत्नी को, उसको बेटी को उठाकर लेकर जाना, दैट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। इसलिए मेरा पति मरने के बाद मुझे वो कोई उठाकर लेकर जाए और उसके हराम में रखे, उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। इसलिए राजस्थान में जौहर शुरू हुआ और बंगाल में सती शुरू हुआ। उसके लिए भी तो इस कारण से हमको साउथ ऑफ विंध्यास, जहां पे इस्लाम का प्रभाव या आक्रमण नहीं पहुंचा, वहां पे हमको यह दिखता नहीं है। उसके विपरीत चार कहानियां दिखती हैं। एक रानी अबक्का 1455 से लेकर 1520 तक, रानी अबक्का और उसकी बेटी दोनों ने पोर्तुगीजों के साथ लड़ाई की। उल्लाल नाम का उसका राज्य था। अबक्का कास्ट से ओबीसी थी, आजकल वो बताया नहीं तो समझ में नहीं आता है, और पोर्तुगीजों का साथ दिया, इसलिए अपने पति को छोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस जाती है मैके। मंगलोर का राजा राजकुमार उसका पति था, और कहती है कि महाराज, माता और मातृभूमि का सौदा नहीं होता, मेरे बेटी के पिता हो इसलिए छोड़ रही हूं, फिर से सामने आ गए तो वो भी नहीं सोचूंगी, ये कहकर छोड़ देती है। और उसके बाद मंगलोर की और उल्लाल की, उल्लाल उसका मायका है, दोनों की जनता अबक्का के साथ खड़ी होती है। मात्र 20,000 की फौज के साथ लगातार 70 साल अपने मरने तक वो पोर्तुगीजों को उल्लाल में नहीं आने देती है। एक वेलुनचियार शिवगंगा की रानी थी, मरुत पांडियन ब्रदर्स, ये दोनों अनुसूचित जाति के एससी उसके सेनापति थे। पांडियन ब्रदर्स उनको कहा जाता है। साउथ इंडिया में उस पर एक अभी कोई फेमस मूवी भी बनी है। उसमें से एक को पब्लिक इसमें फांसी लगाया था ब्रिटिशों ने, लेकिन वेलुनचियार ये पहली ऐसी रानी है जिसने ब्रिटिशों को फील्ड में हराया है। बैटल फील्ड में हराने वाली पहली भारत की रानी ये वेलुनचियार है। 1794 से लेकर 1802 तक ये लगातार प्रयास करती रही। सारे जितने विजयनगर साम्राज्य के राजा थे उनको इकट्ठा किया। ये जब रानी बनी तब विधवा थी, पति मर गया था। शिवगंगा, शिवकाशी, आजकल जहां पे सारे पटाखों की फैक्ट्री के वगैरह न्यूज आती है, उस एरिया की ये रानी थी। वहां पे अभी भी इंस्क्रिप्शन उस मंदिर में है। वो इन सारे राजाओं को, कुछ राजा क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण थे, इन सबको बुलाकर एक डिक्लेरेशन पारित कराती है, एंड शी कॉल्स दिस डिक्लेरेशन एज जम्बू द्वीप डिक्लेरेशन।
वो कहती है ये ब्रिटिशों का जो आक्रमण है ये मेरे राज पर नहीं है, ये आपके राज पर नहीं है, इस जम्बू द्वीप पर आक्रमण है, इस पूरी भूमि को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा झगड़ा तो कौन कितनी जमीन पर टैक्स कलेक्ट करेगा उतना ही है। हमारे यहां राजा का मतलब उतना ही था केवल कि किसका कितने हिस्से पर टैक्स कलेक्शन का अधिकार। अहिल्याबाई होलकर रानी तो इंदौर की थी, जब रानी बनी महारानी तब विधवा थी, जाति से ओबीसी थी, धनगर, शेपर्ड, चरवाहा कास्ट से थी, विधवा नहीं गई। विधवा होने के बाद भी सती नहीं गई। केवल सती नहीं गई, पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, काशी का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, काशी के सारे घाट बनाए, यहां तक आई सोमनाथ का मंदिर बचाया, उसका फिर से शिवलिंग की स्थापना की। किसी ने कहा नहीं भी तुम विधवा हो, सती नहीं गई, ब्राह्मण भी नहीं हो, हमारे मंदिरों में क्यों घुस रही हो। रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ने के लिए उतरी तब विधवा थी, पति मर चुका था, 2 साल का बच्चा था, जाति से ब्राह्मण थी। किसी ने नहीं कहा तुम विधवा हो, सती क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारा नेतृत्व हम क्यों स्वीकार करें। रानी लक्ष्मीबाई की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करके फिर से कूद पड़े। हमने कैसे मान लिया कि भारत में सती प्रथा थी। प्रथा का मतलब क्या होता है? ब्लाइंडली एवरीबडी इज फॉलोइंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन। वी हैव स्टार्टेड ब्लाइंडली बिलीविंग व्हाट ब्रिटिशर्स वांटेड अस टू बिलीव। अभी अगले 25 साल में हमको यदि ये स्टोरी बदलनी है तो हमको हमारे माइंड्स को डीकॉलोनाइज करना होगा, अपने आप को लीडरशिप के रोल में ढालना है। तो इस भारत के नैरेटिव बदलने में हमको अपने आप को तैयार करना होगा, जिस भी फील्ड में हम ये, हम साइकोलॉजी में हैं, हम लॉ में हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में, हम मैनेजमेंट में हैं। भारत के प्रिंसिपल्स उस समय क्या थे वो ओरिजिनल सोर्सेस के आधार पर यदि ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमको सही नॉलेज मिलेगा। उसके आधार पर हमको भारत का समाज समझने के लिए, नहीं तो भारत के सबसे सक्सेसफुल सिटीज और मोस्ट कैपिटल पर कैपिटा इनकम वाले सिटीज तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होने चाहिए थे। मोरबी क्यों है, सूरत क्यों है, जहां पे सरकार का कम से कम इंटरफियरेंस है और जहां पे कम्युनिटी के हाथ में ट्रेड है वो सक्सेसफुल है। भारत में हमेशा ऐसे ही रहा है। अयोध्या का मंदिर बना तो मैं वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहाँ की व्यवस्था में ऑर्गेनाइजिंग टीम में था, तो वहाँ पे गया था। तो मीडिया वालों ने शाम को पकड़ लिया, मंदिर बन गया, रोजगार मिलेंगे क्या? मैंने कहा बताओ मुझे भारत में कब मंदिर गिरे और रोजगार बढ़े? भारत में तो हमेशा ही रोजगार बढ़े जब मंदिर बने, लेकिन उसको हमने एकेडमिकली ऑथेंटिक रिसर्च के आधार पर, ओरिजिनल सोर्सेस के आधार पर एस्टेब्लिश नहीं किया। इस वजह से हम गलत नैरेटिव्स में फंसे हुए। ये हमारा कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है। संस्कृत का अध्ययन करने का अभ्यास छूट गया। सालों साल हम दूसरे स्टेट में चले जाते, गोपाल जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो उत्तराखंड से आते हैं और गुजराती में अच्छा बोलते हैं। नहीं तो कर्नाटका में चले जाते, सर मैं 10 साल रह गया कर्नाटका में, कन्नड़ नहीं सीखा। ये शर्म आनी चाहिए। हमको संस्कृत भी नहीं आती है, भारतीय भाषा भी नहीं आती है, अंग्रेजी सीखते हैं या और कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सीखिए। हमको अब आने वाली लड़ाई में हमारी लीडरशिप रोल और भारत के लीडरशिप रोल दोनों में यदि योगदान देना है तो एक कोई विषय लेकर उसके ऊपर डेडिकेटेडली ओरिजिनल सोर्सेस के आधार पर नैरेटिव ठीक करने में हमारी भूमिका क्या हो, यह हमको तय करना होगा। यह बाहर से कोई नहीं बता सकता, यह आपके अंदर की आवाज ही बताएगी कि ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मुझे प्रश्न पड़ा है, इसका उत्तर ढूंढे बिना और दुनिया को बताए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा चैन ना आए और आपको नींद ना आए जब तक ऐसे प्रश्न मन में ना आए, तभी नैरेटिव बिल्डिंग ये अपने लिए भी आप कर पाएंगे, समाज के लिए भी कर पाएंगे और
देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी कर पाएंगे। आपकी नींद उड़ जाए ऐसी शुभकामना देता हूँ, रुकता हूँ।